اسلام وہ دین جس کے لیے 72 قربانیاں دی گئی. کوئی فیصل آباد والوں سچ بتانا، آپ نے کبھی اس کو کہیں دیکھا ہے؟ کسی بازار میں دیکھا ہو، گھنٹہ گھر دیکھا ہو، کسی پارک میں دیکھا ہو، کسی یونیورسٹی میں دیکھا ہو، کسی کالج میں، کسی شادی پہ جی، کسی محلے میں، گلی میں؟ پھر سوال میرا یہ ہے، سبیل بھی ہے، کھیر بھی ہے، حلیم بھی ہے، دلیم کہہ لیں، حلیم کہہ لیں، جو کہہ لیں، بریانی بھی ہے، نان حلوہ بھی ہے، دین کی طرح ہے. جس کے لیے قربانی ہوئی وہ کدھر ہے؟ ہمارے چہروں پہ نہیں ہے، ہمارے سر پہ، کالج میں نہیں ہے، یونیورسٹیوں میں نہیں ہے، شادیوں میں نہیں ہے. اور حضرت صاحب سب سے بڑا جو اس وقت ظلم ہو رہا ہے ہماری شادیوں میں، سب سے بڑا پتہ کیا کرتے ہیں ہم؟ شادی شروع کرنے سے لے کر دلہن رخصت کرنے تک کسی کو قرآن نہیں یاد، کسی کو قرآن نہیں. ہم تیل پہ خسرے نہیں بلاتے، ہم مہندی پہ ڈھول والے نہیں بلاتے، ہم مہندی پہ کنجریاں نہیں بلاتے ناچنے کے لیے. شادی شروع ہونے سے لے کر دلہن رخصت کرنے تک کسی کو قرآن نہیں یاد، بالکل بھی نہیں. ہر اینٹی قرآن کا کام کریں گے حضرت ہم. فوجی بینڈ بجے گا، دولہے کے آگے اس کے دوست بے شرموں کی طرح آدھا گھنٹہ ناچیں گے. جوان بچیاں بارات پہ پھول پھینکیں گی، اندر ڈی جے بجے گا، مردوں میں عورتوں میں کوئی پردہ نہیں ہوگا. دیور بھابھی کے گھٹنے پہ بیٹھے گا، دھجیاں اڑائی جائیں گی قرآن کی، تمسخر ہوگا اسلام کے ساتھ. اور پتہ ہے اینڈ میں پھر یہ قوم کیا کرتی ہے؟ جب دلہن رخصت کرنے لگیں گے تو قرآن نکال لیں گے. جب دلہن رخصت کرنے لگیں گے تو اس قوم کو قرآن یاد آ جائے گا. تیل پہ نہیں آیا، مہندی پہ نہیں آیا، بارات پہ نہیں آیا، میرج ہال میں نہیں آیا، دیور کو بھابھی کے گھٹنے پہ بٹھاتے ہوئے یاد نہیں آیا. جب دلہن رخصت کریں گے تو قوم کو قرآن یاد آ جاتا ہے. اس وقت قرآن بھی اللہ کی بارگاہ میں کیا کہتا ہوگا ہمارے لیے؟ رب کریم کیسے لوگ ہیں یہ؟ تیل پہ نہیں یاد آیا، خسرے بلائے، کنجریاں بلائیں، ناچ ہوا، شراب پی گئی، بارات پہ ہر واریاتی انہوں نے کی، عورت مردوں کا اختلاط تھا، ڈی جے بجے، گندے گانے چلے، دلہن رخصت کرنے لگے تو میں یاد آ گیا. یہ حضرت جی اے سلابتے ہمیں ٹپو نا، یہ مہنگائی پہ اتنا رونا نہ ڈالو، سارے اس کا جواب خود سے مانگو، تمہیں اس کا جواب مل جائے گا. علماء بیٹھے ہیں، وہ تو قرآن میں کہہ رہا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم، اور میں تانوں عذاب دے کے کی لینا ہے. وہ تو کہہ رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. کبھی سیلاب کی وجہ خود سے پوچھ، تجھے جواب ملے گا. پوچھ خود سے. تیل کے مہنگا ہونے کی وجہ خود سے پوچھ، مہنگائی کی وجہ خود سے پوچھ، تجھے جواب ملے گا. کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما. بھائی پیچھے بھی کیا آئے ہوں جی، یہ اصل میں نا ہم نے کسی کو نہیں بخشا، یہ بیچے ہی نہیں سارے. میاں محمد بخش صاحب بھی بیچے ہیں جی، ہم نے ٹکا کے بیچے ہیں، چھوڑا ہم نے کسی کو نہیں، چسکے لیے ہیں. اللہ کی قسم ہے میاں صاحب دیکھ شیر چ غوطہ مارو تڑی عمر مک جائے گی، ایڈے ایڈے ڈونگے شیر نے واپس نہیں آ سکو گے. عارف کا کلام ہے جی. میاں صاحب کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں ایک گناہ جو میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس نکالا. ایک گناہ جو میرا ماں پیو ویکھے دیوے دیس. ذرا آپ نے غور کرنا، کیا کہتے ہیں؟ لکھ، کتنے جی؟ لکھ گناہ پیا میرا مولا ویکھے پردے پاون. اب آپ نے ذرا لکھ پہ غور کرنا ہے. میاں صاحب نے کتنے کہا جی؟ مطلب لکھ تک پردے پی جاندے نے. تو کام خراب ہونا پھر مطلب لکھ تو تے جانا پھر ہی کام خراب ہونا. اور اسی لکھ تو تے گئے ہیں، کیونکہ میاں صاحب نے کہہ دیا لکھ گناہ پیا میرا مال. مطلب لکھ تک پردے نے سی، لکھ تو بھی اتے گئے اتے. پھر جی پھر کام خراب ہوا. وہ تو کہہ رہا ما یفعل اللہ بیا.
یہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ مبارک، چور پکڑا گیا، چور پکڑا۔ اسلام میں چور کی سزا ہے ہتھ کٹ دے۔ فیصلہ باد کو پھرن نہ کٹ کو 150-200 ٹنڈے، یہی سارے پوچھی بھائی کی ہویا تو دسے میں چوری کی تھی، تاں ویکھنا کیڑا چوری کرتا ہے۔ لیکن ادھر حالات یہ ہیں کہ چور چوری کرنے جانے سے پہلے اپنے رہا ہونے کا اہتمام کر کے جاتا ہے۔ ادھر یہ حالات ہے۔ جمعے کے بعد کریں نا زانیوں کو سنسار، ایک گھنٹہ گھر میں دیکھتا ہوں نا زنا بند ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ یا حضرت جی گھنٹہ گھر میں اترے نا جمعے کے بعد قتل کرنے والوں کی گردنیں، میں دیکھتا ہوں نا حالات ٹھیک ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن کیونکہ کچھ بھی نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ مایوس نہیں ہے، نہیں ہم اچھے دن آئیں گے اللہ کے فضل سے، اچھے دن ہیں۔ بس آپ کو تھوڑا سا ذرا ہوش میں، اسپیشل جی میری یوتھ، میں مخاطب بھی تاڑے نال جن جوان بیٹھے، تسی میرا کل ہو، میں تاڑا خراب آج جاں، میں نے امید ہے تسی میرا اچھا کل ہو۔ آپ کو تھوڑا ہوش میں، مثلا آپ ہر کام فیس بک پہ کر رہے ہو بیٹھے، فیس بک پہ آپ نے کشمیر چھڑا لیا ہوا ہے، فیس بک پہ ماشاءاللہ پاکستان بہت ترقی کر رہا ہے آج کل، سارا کچھ ہی فیس بک پہ آپ کر رہے ہیں۔ مثلا یہ سیلاب آیا، ساری قوم فیس بک پہ رو بنی ہوئی تھی، اور جی کتھے نے حکمران، کتھے نے حکمران، ٹھیک ہے یہ فیس بک تے پوچھ دے ہو، الیکشن آن لگے نے جو ووٹ منگن آن کے پوچھی ہونا کہ جی حضرت جی تو بلوچستان ڈوبنڈے ہی کتنے سو، جب سوات ڈوب رہا تھا، بحرین ڈوب رہا تھا، مدائن ڈوب رہا تھا، حضرت صاحب آپ کدھر تھے؟ جب تونسا ڈوبا، جب راجن پور ڈوبا، جب حیدرآباد ڈوبا، آپ کدھر تھے؟ ادو پتر تسی ایک نے بھی نہیں پوچھنا۔ کسی نے شامی کباب تے ووٹ دینا ہے، کسی نے بریانی دے ڈبے تے ووٹ دینا ہے، کسی نے چاہ دے کپ تے ووٹ دینا ہے، کسی نے بسکٹ تے ووٹ دینا ہے۔ ایسا ہی ہونا ہے آج کل فیس بک تے سارے ہی روبن حکمران ووٹ لینا آنا، کسی نے بھی نہیں پوچھنا ہے، کہنے میں بھاوے ووٹ دینے۔ لیکن یاد رکھنا پتر، جب وہ دنیا پہ چھا گئے، پتہ کیوں چھا گئے؟ کیونکہ وہ حضرت عمر سے بھی پوچھ لیا کرتے تھے، اس لیے چھا گئے حضرت۔ انہوں نے مصر کی دھجیاں اڑا دی، انہوں نے ایران کا پاسا پلٹ دیا، کیوں؟ کیونکہ وہ حضرت عمر کو بھی پوچھ لیا کرتے تھے، حضرت اے وہی سوٹ ہے، اے وہی کپڑا ہے جڑا مینوں بھی ملیا، تانوں بھی ملیا، میرا قد چھوٹا، آپ کا قد دراز، میرا بڑی مشکل سے بنا، حضرت آپ کا کیسے بن گیا؟ اور وہ صرف عمر نہیں تھے، پوچھنے والوں کو پتا تھا یہ مراد رسول بھی ہیں، پوچھنے والے کو پتا تھا یہ وہی عمر ہے جب چلے تو شیطان راستہ بدل جائے، پوچھنے والے کو پتا تھا یہ وہی عمر ہے جن کی نیکیاں تاروں سے بھی زیادہ ہے، لیکن وہ پھر بھی پوچھ لیا کرتے تھے۔ وہ اس لیے دنیا پہ چھا گئے میاں، اسی صرف نعرے مارنے والی قوم، ہم صرف فیس بک کے ہیرو ہیں سارے کے سارے۔ الیکشن آنے لگے، اللہ میں تو صرف اس سیٹ کا حق ادا کر رہا ہوں، میرے مجھ سے تو سارے بڑی محبت کرتے ہیں، پاویں کو نون لیگ دا ہے، پاویں کو پی ٹی آئی دا ہے، میں تو سیٹ کا حق ادا کر رہا ہوں، تو کسی میں نہیں پوچھنا ہے۔ حضرت سے بلوچستان ڈوبیا کتنے سو، جناب تسی تے ترکی سو، جناب تسی تے کینیڈا سو، ایک نے بھی نہیں پوچھنا، تسی فیس بک تے کر سکتے سارا کچھ۔ باقی ابھی اس قوم میں اتنی ہمت نہیں ہے، جس دن آئے گی وہ دن پھر تم دنیا پہ چھا جاؤ گے۔ میں حضرت صاحب، میں قبلہ سی رضوی صاحب مسافر لوگ ہیں، سیالکوٹوں نکلے ہیں، فیصل آباد ہاں، کل بھی فیصلہ، کل بلکہ سمندری بھی جانا ہے، ڈجکوٹ بھی جانا ہے، کل ماموں کھنجن بھی جانا ہے، پھر میں لاہور جاؤں گا۔ یہ گزرتا ہوں نا جب تو ضرورت وہ بڑا سا فلیکس لگی ہوتی ہے جس پہ لکھا ہوتا ہے یہ جی کینیڈا میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع، یہ جی یو کے میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین موقع، یہ جی آسٹریلیا میں تعلیم حاصل کرنے کا بہترین۔ اللہ کی قسم ہے بڑا دل لگتا ہے، وہ یار جن کے پاس قرآن ہو وہ کینیڈا پڑھنے جائیں۔ حضرت صاحب ختم نبوت، جس قوم کے پاس قرآن ہو وہ کینیڈا پڑھنے جائے، لیکن دکھ کی بات ہے قرآن ہے لیکن ہے الماریوں میں۔ حضرت سید صاحب بیٹھے ہیں، رضوی صاحب بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، جس قوم کے پاس علی ہو وہ قوم یو کے جائے، وہ قوم آسٹریلیا جائے،
लेकिन दुख की बात यह है, अली सिर्फ हमारे नारों में है, अली सिर्फ हमारी जुबान में है। जिस दिन इस कौम के दिल में, किरदार में अली कुरान आ गया, तुम कैनेडा नहीं जाओगे, कैनेडा वाले आके कहेंगे ओ कुरान वाले हो, ओए अली वाले हो, सानू भी पढ़ाओ। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। हाँ जी, उस दिन कैनेडा वाले आके कहेंगे सानू पढ़ाओ, तुम्हारे पास अली है, तुम्हारे पास कुरान है, लेकिन ना अली है ना अली नारे हैं, कुरान अलमारी है। इसलिए कभी यूके जाने हैं, जिस दिन हजरत जी दोनों किरदार में आ गए, फिर तुम्हें कहीं जाना नहीं पड़ेगा। किरदार में लाओ यार, किरदार में अली, किरदार में कुरान, किरदार। हाँ, बड़ा वक्त हो गया यार, तुम्हें पाकिस्तान को देख कर रोना नहीं आता? है जी, मैं फिर नौजवानों से मुखातिब हूं, ये 14 अगस्त पे भी चलो चलते हैं। बड़ी तुमने मस्ती की जी 14 अगस्त को, बड़ी तमाशबीनी की। मैं पुत्र आपको बोल सकता है कोई तड़े, मैं कोई गुस्सा नहीं करूंगा, बस जरा अदब के दायरे में रहना। आप बोल सकते हैं, आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। आपने 14 अगस्त में जी बड़ी खुशी मनाई, मुझे आप बता सकते हैं कि खुशी किस बात की मनाई है? हमारे पास कोई खुशी मनाने की कोई वजह है? पाकिस्तान, वो तो मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया, ख्वाब अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने देखा, वो तो पीर सैयद जमात अली शान, हमने तो बनाया ही नहीं, हमारे खाते में तो वो आता ही नहीं, उसको तो निकालो ना, साइड पे करो, और उसके बाद अब पाकिस्तान की बात कर लो। क्या है जी आपके पास खुशी मनाने के लिए? क्यों जी? ओ भाई, मैं, रजवी साहब, शाह साहब, पागले भाई होरी, नकील साहब, और यार जितने बैठे हो सारे तो मकरूज बैठे हुए हो। खुशी किस बात की मना रहे थे? IMF के पैसे तुमने देने हैं, वर्ल्ड बैंक के पैसे तुमने देने हैं, रशिया के पैसे तुमने देने हैं, दुबई के पैसे तुमने देने हैं, सऊदीया के पैसे तुमने देने हैं, चाइना के पैसे तुमने देने हैं, अमेरिका के पैसे तुमने देने हैं। खुशी किस बात की मना रहे थे? तो पता है, कर्जा भी सूद पे लिया हुआ है, वो तो मकरूज, वो तो सूदी मकरूज है ही सारे। पाकिस्तान में इस वक्त अल्लाह और अल्लाह के रसूल से जंग चढ़ी हुई है। खुशी किस बात की मना रहे हैं? मैं कह रहा हूं जी, को वजह है आपके नजदीक तो उठ के, मुझे हो सकता है मेरी ना, आप बोल सकते हैं मिस भाई साहब, ऐसी गल की खुशी मनाइए। PTCL बिक गया, PIA खसारे में, स्टील मिल खसारे में, बाबडा आदि बिक चुकी है, आदि के लिए मामला हो रहा है कि वो भी बेचनी है हमने, रोड गिरवी, एयरपोर्ट गिरवी। खुशी फिर केड़ी गल दी मना? उलमा बैठे, आपको पता है जब पाकिस्तान बना 90,000 बेटियों की इज्जत लुटी थी। तियां दी इज्जत लुट जाए तो मुंह ते झंडे बना के ते मोटरसाइकिलों के सलंसर कट के अच वाजे बजाईदे ने। गैरत मर गई है तुम सबकी, बेगैरत हो गए हैं सारे के सारे हम। इज्जत लुटना तो दूर, और एक बेटी के सर से दुपट्टा उतर जाए और बंदा सर उठाने वाला नहीं रहता। हम वो है 90,000 बेटियों की इज्जतें लुटवा के 14 अगस्त को मुंह के ऊपर झंडे बना के बाजे बजाते फिर रहे थे। नहीं यार, खुदा दा वास्ता जी, वो पाकिस्तान आने होश जाओ यार, खुदा दा वास्ता जी होश जाओ, होश जाओ। दीन नहीं, इस्लाम नहीं। और पता है इसका जवाब 100 साल पहले मियां मोहम्मद बख्श साहब दिए गए। उन्होंने पता क्या कहा? आप फरमाते हैं, दीन नबी दावांग यतीमा दर दर तक के खावे। प्यार बड़ा है, उन मुंह नहीं देना कोई, मुंह इस्लाम नू कोई प्यार बड़ा है, जान दे देनी ए नहीं। इसका कोई वजन है? अद्धा किलो के 2 मोबाइल तुम सारे ने जेबा च पाए ने। इतने उलमा बैठे हैं, कभी किसी ने कहा हो यार दाड़ी के भार नाल धोन च पीड़ रही है। हाल आपकी साइंस पता क्या कह रही है? जो पूरी एक मुट्ठी दाढ़ी रखेगा
आपकी साइंस कह रही है जो पूरी एक मुट्ठी दाढ़ी उसको कभी भी गले का कैंसर नहीं होगा। आपकी साइंस कह रही है। अल्लाह मुझे साइंस का कोई नहीं है, हम तो जुबान मुस्तफ़ा पे जान देने वाले लोग। साइंस क्या कह रही है क्या कहेगी हमें से कोई गल नहीं। तो पता मेरे बुजुर्ग क्या कहा करते थे, आप फरमाया करते थे संगिया एक अख रख ले, संगिया एक अख। पूछा जी की होएगा कख रखिया, फरमाया फिर उस दिन तेरा भी कख रह जाएगा है। लेकिन अब क्या है, दीन नबी दा वांग यतीम दर दर तक के खाए। कोई इस्लाम को अपनी शादी पे बुलाने को तैयार नहीं है, कोई इस्लाम को अपने घर बुलाने को तैयार नहीं, कोई इस्लाम को अपने कारोबार में बुलाने को तैयार, कोई इस्लाम को अपनी दुकान पे बुलाने को तैयार। वो प्यार बड़ा ज़्यादा। दीन नबी दा वांग यतीमा दर दर तक के खावे। कित्थों ले आवा उमर बहादुर जड़ा नू सीने हैं। जी रोज का मेरा मुशाहदा है, दिल ही दुखता जी, क्या कर सकते हैं। हज़रत साहब सोहनी महफिल, सोहनी 3-4 घंटे की सोहनी महफिल। मैंने तो पता की करना इस कौम ने, सिर्फ चौलों का एक शापर लैन एक दूजे ने धक्के मारने गए। दुख होता है यार वो चांद पे चले गए, वो मरीख पे चले गए। दसिया जी भी चौलों का एक शापर लैन एक दूजे ने धक्के मारने गए। वो चांद मरीख, अच्छा ये चढ़ रहा है ना, ये यूट्यूब पे चढ़ेगा। जरा थले कमेंट्स पढ़िए कौम, पता है मैनू की कह गए मुस्बाई साहब तुम चांद ते टुर जाओ। मैंने पढ़े हैं कमेंट्स में, कोई बात को नहीं समझेगा, मैनू कह मुस्बाई साहब तुम चांद ते टुर जाओ। हाँ बड़ी अजीब अच्छा कौम है हमारी, जो बयान किया वो उधर नहीं आएगा जी तुम फिर मरीख ते टुर जाओ मिसबाई साहब। मैं मिसाल के तौर पर मैं फिर आप सवाल करने लगा। चौथा सवाल है जी 4 यारां दे नाम। ये माशाल्लाह आप सब ने मोबाइल उठा रखे हैं, ये बेटा आपने जवाब मुझे जरा देना आगे से, ठीक है जी। सैमसंग किन्ना दा है, ते नोकिया ठीक हो गया, आईफोन फिर तुम 75 साल की बनाया। जे तुसी ओप्पो या वीवो की गल करोगे वो भी तुसी चाइना तो मंगा के जोड़ते पे। अच्छा जी टोयोटा किन की है जी, होंडा किन की है, सुजुकी किन की है, एमजी किन की है, हुंडई किन की है, टुक्सन किन की है, मर्सिडीज किन की है, BMW किन की है। फिर आनंद छोड़ो यार असी 75 साल की बनाया, गल करो ना यार। मैं इधर लाहौर था जामिया में ना, मुझे एक दिन हजरत ने मैं बड़ी हैंड करने लगा हूँ बस बात कर। हजरत ने एक दिन बड़ी बाकमाल बात सुनी। ये अब भी हजरत जी दुनिया में सबसे ज्यादा जलजले जापान में आते हैं, सुनामी जापान में। कभी नहीं हजरत जी मंगण गए, खुद ही खड़े हो जाते हैं। फिर फरमाने लगे भट्टो का दौर था, तो भट्टो ने ना 12 बंदों पे मबनी एक वफद भेजा जापान। जाओ एक क्या जलजले सब तो बोते सैलाब सुनामी, फिर भी उठ के खड़े हो जाते हैं। तरक्की 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 कर रहे हैं, जाओ चेक कर क्या करते क्या है। कहते हैं हम जब 12 बंदे जाके जापान एयरपोर्ट पे उतरे ना, हमें 12 जापानी रिसीव करने के लिए खड़े थे। उन्होंने कहा जी घर जाना है। कहते हैं हमने 11 नहीं गए। उन्होंने कहा नहीं हमने होटल में ठहरना। कहते वाहिद मैं गया। मैंने कहा जी होटल में रह के तो देख ही नहीं सकूंगा करते क्या है, इनमें रहूंगा तो देखूंगा। कहते मैं रहा और फिर मैंने उनकी चीजें नोट करनी शुरू की, ये क्या क्या। मैं मिसाल के तौर पे आपने कभी देखा हो तो जापानी 2 लकड़ियों के साथ खाते हैं। असल में ये हमारे महबूब अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, 3 उंगलियों के साथ खाना। अब जाहिर है वो तो नहीं करेंगे वो। उन्होंने फिर क्या किया, बात वो वाली रखी लेकिन बदल दिया थोड़ा सा, हाथ में 2 स्टिकें पकड़ ली। लेकिन तरीका असल में किन का है, हमारे नबी। आप 3 उंगलियों के साथ खा के देखें कितना का खा लेंगे, आपसे खाया नहीं जाएगा। 3 उंगलियों में क्या आएगा हजरत, लेकिन असी किमें खाने बुक कौन हो। फिर उसका रिजल्ट क्या निकला, अस्पताल भरे पड़े। अल्लाह की कसम है आज 3 उंगलियों पे आ जाओ पाकिस्तान वालों, ना तुम्हारे अस्पताल खाली हुए मिसबाई जुर्मदार है, ना खाली हुए मैं जुर्मदार। 1 साल सिर्फ 3 उंगलियां खा के देखो। फरमाया भूख लगे तब खाओ, अभी भूख हो हाथ उठा लो,
ना फैसलाबाद दे अस्पताल खाली होए मैं जुर्मदार हाँ, मैं जुर्मदार हाँ, मैं जुर्मदार हाँ। आगे देखो अपने नबी अलैहिस्सलाम के तरीके, अही बुकों नाल खान दे सबसे ज्यादा नबी अलैहिस्सलाम को नापसंद ज्यादा खाना था। फतहुल बारी अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, मेरे महबूब का पर्दा फरमा जाने के बाद आपकी उम्मत में जो सबसे पहली बिद्दत जारी हुई वो ये थी, उम्मत ने ज्यादा खाना शुरू कर दिया। बहरहाल बात फिर बढ़ जाएगी। वो कहते मैं नोट करता रहा। आखिरी दिन जी रवानगी थी पाकिस्तान। कहते मुझे समझ ना आई, इसने मेरी इतनी खिदमत की है, मैं क्या करूंगा। आप फरमाते मैं बाजार गया, मैंने एक कैमरा खरीदा जिसमें वो रील डलती थी। कहते मैं जब निकलने लगा ना तो मैंने जापानी के बच्चे को प्यार किया, कैमरा थमा दिया। कहते हैं अब जापानी आगे से नहीं हजरत ये आप क्या कर रहे हैं, मेरी मेहमान नहीं, मेरे नबी अलैहिस्सलाम की हदीस पाक का मफहूम है तोहफा दो मोहब्बत बढ़ेगी। मैं तो जा रहा हूँ, जब भी तू कैमरा यूज़ करेगा मैं तुझे याद आऊँगा। कहते हैं उसने रख लिया। तो कहते हैं जब मैं निकलने लगा ना तो वो भी मुझे आगे से कहता है हजरत अगर गुस्सा ना करें तो कैमरे की रसीद मुझे दे दे। कहते रसीद तो मैंने दे दी और मेरे भी दिल में ख्याल है भाई रसीद का क्या करेगा। कहते मैंने भी पूछ लिया भाई रसीद का क्या करेगा। तो फरमाते वो जापानी आगे से कहता है कि हजरत हमारे जापान का कानून है कि जापान में जब भी कोई मेहमान आके कोई जापानी चीज़ खरीदता है ना तो हमारा जापान उसको खरीदी हुई चीज़ पे 40% डिस्काउंट देता है। जब आपने कैमरा खरीदा इस पे डिस्काउंट लिखा हुआ है। अब मैं ये करूँगा क्योंकि कैमरा पाकिस्तान नहीं जा रहा, कैमरा जापान में रहेगा, मैं दुकान पे जाके ना तो इसका डिस्काउंट ख़त्म करवा के जो बाकी पैसे हैं मैं दूंगा। उस्ताद फरमाते मैं समझ गया जब एक आम सा जापानी भी अपने जापान के साथ इतना मुखलिस है तो वो जापान तरक्की नहीं करेगा तो और क्या करेगा। आखिरी सवाल जी गल ख़त्म मेरी, जवाब देना जरूर। सच दसो, चलो मैं कान च पुछ लेना तुम गुस्सा ना कर दी। सच दसो असी भी पाकिस्तान के नहीं मुखलिस है नहीं मुखलिस? बोलो तो सही। नहीं यार खुदा दा वास्ता जी मैं मक्खी ते मक्खी नहीं मारी। इस बात की तकरीरें हमें भी आती हैं वो तो अगे जन्म च सड़न डया बलन डया। मैंने तो ये किया है जो महबूब की उम्मत है उनको बचाने की कोशिश की है। मिर्ज़ा जो होता खुदा का नबी तो टट्टी में गिर के न मरता कभी। सब याद है जी हमें। मैं कर सकता था सारा कुछ, वो तो जहन्नम में जल रहे हैं, मैंने तो कोशिश की है कि ये जलने से बच जाए। मैं कर सकता था, किसी को अच्छा लगा फिर भी नहीं लगा, हमने तो अपना काम कर दिया। मुखलिस हो जो पुत्र। ये जो आप हुक्मरानों पे डाल रहे हैं मैं नहीं इस बात को मानूंगा, मैं इस बात को नहीं मानूंगा। भाई टोटल नेशनल असेंबली 400 सीटें हैं, हम कितने हैं जी? 22 करोड़। भाई फैसलाबाद वाले हो गल समझ आती है 422 करोड़ लुट के टुर गए। क्यों जी बात समझ आती है? वो भाई जे फैसलाबाद वाले जागते हो, जे सियालकोट वाले जागते हो 400 तो छो 4 नहीं लुट सकते। ऐसा मतलब है कसूर 400 का नहीं, कसूर 22 करोड़ का है। कितनी देर उन पर डालते रहोगे? अच्छा मैं पूछता हूं जब वो लूट रहे थे तो आप किधर थे? जब वो लूट रहे थे किधर थे आप? ये नहीं ढकोसला चलेगा मियां। ऐसे ही तो नहीं है चमन की तबाहकारियां, कुछ बागबां भी हैं बरको शरर से मिले हुए हैं। काम करो, अपनी नमाज़ें पूरी करो यार। एक को हो इस वक्त काम की जरूरत है। हाँ वो कादियानी फितना हो, हाँ वो काम की जरूरत है। आप काम के बगैर इन फितनों को नहीं रोक सकेंगे। हम इधर चौक में जलसा, मेरा ताल्लुक, मैंने कितनी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया, अब तो इस तरह का हो गया आपको पता ही नहीं, आपकी यूनिवर्सिटियां कादियानियों से भरी पड़ी हैं। हम बस चौक में इकट्ठे हुए, ओ तेरी हो फड़ी हो लत्तां खींचो मार दे मुकियां। वो काम कर रहे हैं उधर, काम करें। आप जितने नौजवान बच्चे बैठे काम करो बेटे, और को इरादा करो काम करना है, बाकी वो काम ले लेगा सारी कौम। या अल्लाह कोई मोहम्मद बिन कासिम भेज, कितू भेज। या अल्लाह को सलाहुद्दीन अय्यूबी कितू भेज। क्या पहले सलाहुद्दीन अय्यूबी चौथे आसमान से आया था? माने जाना था सलाहुद्दीन अय्यूबी को। और मैं नौजवानों से पूछूंगा, ओए और तू किसी का यार बनने को तो तैयार है,
तू डॉक्टर बनने को तो तैयार है, तू इंजीनियर बनने को तो तैयार है, सलाहुद्दीन अयूबी तुझे बनते क्या होता है? क्यों मंगना ही है? डॉक्टर वाली नहीं को कहता यार डॉक्टर भेज जी मैं दाखला ले लेना, तू बन। आवाज आ रही है भाई, खाली है सलाहुद्दीन अयूबी की सीट, आओ किसने लगना सलाहुद्दीन अयूबी? मोहम्मद बिन कासिम की सीट खाली है, किसने लगना मोहम्मद बिन कासिम? वो टीपू सुल्तान की तलवार जो दिल्ली के म्यूजियम में पड़ी है, जिसका वजन 100 किलो है, वो चीख चीख के कह रही है कोई मेरा हक अदा करने वाला? लेकिन उस तलवार ਨੂੰ ਕੀ ਦਸੀਏ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਚੂੜੀ ਵਾਲੀ ਬਾਹ ਫੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਤੇ उनको गर्ल फ्रेंड चाहिए, बल्कि एक भी नहीं चाहिए, वाह भी चाहिए। बात गलत तो नहीं की जी मैंने? तो टीपू सुल्तान की फिर तलवार चूड़ियों वाला हाथ पकड़ने वाला हाथ तो नहीं पकड़ सकता। उधर से आवाज आ रही है हम तो मायल बकरम है कोई सायल, राह दिखाएं किसे कोई राहरवे मंजिल ही नहीं, कोई काबिल हो। लिखा जी जब हजरत गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाहि तआला अलैह को सजाए सुना दी ना, जज ने कलम तोड़ दिया, तो जो हमारे बुजुर्ग थे उन्होंने कहा लै थले तो जोर ला बैठे हैं, उत्ते लाइए, क्योंकि हमारे होते अगर इल्मुद्दीन सूली पे चढ़ गए तो हमारा क्या फायदा है। बुजुर्गों की आपस में मुशावरत हुई, भाई हम जो सबको रूहानी वजीफा बताते हैं, जो बेगुनाह कैद हो वो सूरह यूसुफ की तिलावत करे, कर नहीं सकता किसी से सुने, ये भी नहीं कर सकता किसी मुत्तकी हाफिज साहब की बारगाह में अर्ज करे इधर रोज मेरे लिए एक बारी पढ़ चढ़ा करो, अल्लाह रिहाई का एहतमाम कर देगा। तो चलो ये नुस्खा इधर भी आजमाते हैं। दूसरी बात ये हुई पता नहीं बिल्मुद्दीन नाजरा भी पढ़े कि नहीं, मरूफ पढ़े हैं, मजूल पढ़े हैं, कारी से पढ़े हैं, हाफिज से पढ़े हैं, तजवीज़ से पढ़े हैं, मखारिज से पढ़े हैं। तो चलो ये करते हैं कि ये ड्यूटी भी हमारी रही, रोज़ जाके ना जेल में गाजी इल्मुद्दीन को सूरह यूसुफ सुना। अब जितने बुजुर्ग थे ना, मैं हाफिज़ कुरान हुजूर मेरे मिल्लत पीर सैयद जमात अली शाह थे, जो बातें बाहर हुई अंदर जाके भी हुई। इल्मुद्दीन आगे से कहने लगे हजरत ऐसा ना सोनी गल केड़ी है, सैयद कुरान सुनाए थे इल्मुद्दीन सुनाए, बिस्मिल्लाह करो। शाह साहब ने जनाब आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम रा तिलका आयातुल किताबिल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु कुरआनन अरबिय्यन लअल्लकुम ताक़िलून। उलमा कसीर तादाद में बैठे हैं, बड़ा लोया हाफिज भी हो ना, लोया। थोड़ी तवज्जो हटी, साथ ही खता, कैफियत आ रही थी, सामने वो बैठा है जो नामूसे रिसालत पे कुर्बान होने जा रहा है। बस थोड़ी सी तवज्जो हटी, शाह साहब ज़बर को ज़ेर पड़ गए। इल्मुद्दीन आगे से अर्ज़ करते हैं हज़रत राबिद वली हो सैयद भी हो, पढ़न कलाम इलाही डे, ज़रा तवज्जो फरमाओ, ज़बर में ज़ेर पड़ गए। पहली हैरानगी तो इस बात पे हुई, हम तो सोच के आए थे पता नहीं नाजरा भी आता कि नहीं, ये हाफिज़ की गलती निकाल रहा है। जब देखा तो गलती भी थी, हैरान होकर पूछा इल्मुद्दीन तुमने किधर से पढ़ा? तो आगे से इल्मुद्दीन फरमाने लगे शाह जी आपने तो फटियों पर बैठकर उस्तादों से पढ़ा है, इल्मुद्दीन ने पढ़ा भी उन्हीं से है जिन पे नाजिल हुआ है। हाय हम तो मायल बकरम, हम तो मायल बकर कोई सायल ही नहीं, राह दिखाएं कोई राह रहे। किसी ने कनाडा जाना है, किसी ने यूके जाना है, किसी ने यूएसए जाना है, किसी ने ऑस्ट्रेलिया जाना है, किसी ने नीदरलैंड जाना है, किसी ने हॉलैंड जाना है, किसी ने जापान जाना है, किसी ने मलेशिया जाना है, किसी ने कोरिया जाना है, वो केड़ा वे जिन्हें मदीने जाना है। हम तो मायल बकरम है कोई सायल, राह दिखाएं किसे कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। और बेटा मैं स्पेशल नौजवानों के पुत्र दो कादियानियों के हथे, पहला चिट्टी चमड़ी ते दूजा वीजा, पुत्र वफा करनी है हुण ना चिट्टी चमड़ी ली नबी अलैहिस्सलाम नूं छड्डियो ते ना वीजे ली छड्डियो है वफा। बेटा दोनों में से जो चाहिए हो ना, नहीं मान रहा अंदर वाला, दो नफल पढ़ना, अल्लाह का जिक्र करना, दुरूद पाक पढ़ना, नबी अलैहिस्सलाम से मांग लेना, लेकिन पुत्र वफा करना, वफा करना। अल्लाह कुर्बान जाऊं, इकबाल ने तो कमाल कर दिया, हम तो रह गए ना चिट्टी चमड़ी पे, इकबाल ने कमाल कर दिया। क्या कहते इकबाल,
تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں. چٹی چمڑی